Let's move on to the fourth big story here on the Urban Debate at 9 p.m. Shifting focus to the Lakhimpur Kheri case. The Supreme Court has appointed Justice Rakesh Kumar Jain, former judge of the Punjab and Haryana High Court, to supervise on a day-to-day basis the Uttar Pradesh SIT's probe into the Lakhimpur Kheri violence, in which 8 people, including 4 farmers, were killed in October. Now, a bench comprising Chief Justice N.V. Ramanna and Justice Suryakant and Justice Heba Kohli also took note of the names of the IPS officers provided by the state government and appointed 3 officials as part of the state SIT. But the court also made some interesting, rather scathing observations. The court said that we are concerned about guaranteeing a fair and thorough probe. The court said that we are not happy with a slow-paced probe, with the manner and the outcome of the probe conducted so far. That justice must not only be done, but also be seen and perceived to have been done. So, reconstitute the SIT to preserve the faith and trust of people in justice system, and that the ongoing probe has to be monitored by a retired High Court judge who may not have his roots in Uttar Pradesh. That is the extent to which the Supreme Court has gone. Reconstitute the SIT, bring in a retired judge who is not linked to Uttar Pradesh to ensure that the perception of a fair investigation is maintained. Present SIT comprises of middle-level and subordinate-level police officers posted in Lakhimpur Kheri. In spite of their perceived commitment and sincerity, there may still be a lurking suspicion in respect of fairness and independence of such a probe. Hence, the Supreme Court said that we will reconstitute the SIT infused with directly recruited IPS officers who don't hail from Uttar Pradesh, and that the SIT shall utilize latest forensic investigative methods to reach to the truth. Weeks after that horrifying incident, where farmers of this country were mowed down, and in the retaliation then that took place, others were killed. Weeks after that, weeks after Supreme Court first took up this case and said nothing doing, we are going to look at this, ask you questions, and we want a full investigation. The Supreme Court is still finding ways to ensure that the probe doesn't get tarnished, that the probe moves in a fast-paced, constructive direction. And repeatedly they say, we are not happy. We are not happy with the pace. What is it that they're doing to get the accused? At every step, they've had to ask questions. How much longer will this defiance of the establishment in Uttar Pradesh continue? Ashwini Shahi, Uttar Pradesh BJP leader, joins me this evening. Narendra Nath Mishra, assistant editor of NBT, also with me. सबसे पहले मैं अश्विनी जी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मतलब और कितनी बार आप ये सुप्रीम कोर्ट से सुनना चाहते हैं कि भाई एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करो जिससे कि देश को सच्चाई पता चले। अब जज भी जो आए वो भी उत्तर प्रदेश से ना हो, पुलिस वाले जो भी आए वो भी उत्तर प्रदेश के ओरिजिनली ना हो, जो अभी तक किया है वो ठीक से नहीं हुआ। ये कितनी बार सुप्रीम कोर्ट का है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि जब घटना हुई, घटना के समय परिवार वालों की जो मांग थी, उस मांग को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा किया। पहली मांग उनकी थी दोषियों के खिलाफ वो FIR दर्ज की जाए, वो हो गया, माना गया। दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, न्यायिक जांच की जाए, उसके बाद हम लोगों को एक मुआवजा दिया जाए। ये सभी मांगे उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग लिया और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप जी को वहां पर नॉमिनेट भी कर दिया गया। SIT गठित की गई, मुकदमे दर्ज हुए, उसमें गिरफ्तारियां भी धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुए उसके बाद वहां पर गिरफ्तारियां। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फेल है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, तो उन्होंने कुछ किया होगा। इसलिए यहां पर कहने की ये बात है कि हम देश में रह रहे हैं, देश के कानून व्यवस्था पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को उत्तर प्रदेश में किसी भी एक जज के ऊपर हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जज प्रदीप जी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कर्ता तो नीचे का ही सबऑर्डिनेट है उनका,
उनकी तो एक कमेटी अध्यक्षता में बनी होती है। तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस का नाम उन्होंने बता दिया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश उसको एक्सेप्ट करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, एसआईटी में जो लोग थे, वो कोई भी आ जाएगा, चाहे वो पंजाब से आ जाए या कर्नाटक से आ जाए, आएगा तो लोकल आदमी, क्योंकि उसको सारी चीजें पता होती हैं, तो एक आदमी उस कमेटी में जरूर होता है। तो लोकल से हम भाग नहीं सकते हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान लोगों के समझ में आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता। नहीं, पर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, और टू मी नरेंद्र नाथ मिश्रा, एवरी टाइम दिस केस कम्स अप फॉर हियरिंग इन द कोर्ट and certain orders are given, certain observations are made, it just seems, ऐसा लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो स्टेप्स लिए उससे कन्विंस नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कि इसमें हम न्याय दिलाएंगे और सब चीज़ सही से होगी, तो वो तो फिर दे शुड बी एबल टू कन्विंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट। वैलिड पॉइंट आपने कहा। अभी जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम इन आइडियल स्टेट ऑफ द जो एक होती है उसमें बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसी में मेरे कुछ एक्सटेंसिव जो क्वेश्चंस हैं। अब आपने देखा होगा जब पत्रकार की जो वहां पे इसी इंसिडेंट में जर्नलिस्ट की मौत हुई थी, तो सरकार ने और पुलिस ने किस तरह से उस मामले को एक डाइवर्ट कर दिया कि नहीं वो नहीं हुआ है, उनकी गोली से मौत नहीं हुई है, गाड़ी से मौत नहीं हुई है। लेकिन जब कोर्ट ने ग्रिल किया और पूछा तो एडमिट किया कि नहीं, ये तो गाड़ी के कुचलने से मौत हुई थी। कई सारे जो फैक्ट्स हैं, जब आप अगर देखें जो कोर्ट में जब सामने आई, जो पुलिस ने उस जांच में जो एक्सेप्ट किया कोर्ट के अंदर, और जब मामला कोर्ट में नहीं गया था तब जो पुलिस का वर्जन था, अगर दोनों को आप मैच कर लेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्यों इतना इन्वॉल्व होना पड़ा और क्यों इस तरह से टर्म्स डिक्टेट करना पड़ा कि आप इस तरह से करेंगे। सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, एक दिन दो दिन कंप्लीटली डिनाइल मोड में पुलिस थी और उसको एक अलग अलग एंगल दिया जा रहा था। तो जो खुद ही आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने से लेकर आप 4 दिन पहले का, अगर ये खुद ही जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है वो अगर देख लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कन्फ्लिक्टिंग थी। इनको समझना पड़ेगा कि इनकी जो पुलिस थी उन्होंने मिसलीड किया, कई बार कई जगह पे होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आना और उन्हें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, और जस्टिस जैन जो है उनकी जब पंजाब हरियाणा में हाईकोर्ट में रहे हुए हैं, उनकी भी वो बहुत ही बेहतरीन जज माने जाते रहे हैं। तो इन सब अगर वो आया है तो एक वैलिड पॉइंट है। वो ऐसे नहीं कि फ्रॉम नोवेयर वो आ गए, उन्होंने काफी मौका दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, एट द और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे उनको इस तरह से इंटरफेयर करना पड़ा। जी बिल्कुल। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब उन्होंने कहा एसआईटी के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट बैठ के वहाँ आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट देख के इसमें से कौन जो उत्तर प्रदेश के नहीं है, दूसरे स्टेट के हैं, यूपी काडर में हैं, उनको हम यहाँ पे अपॉइंट करें। ये क्यों? बिकॉज जो पहले वाले थे उन दे वर लोकल्स ऑफ दैट एरिया। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एन एसआईटी? ये तो फिर एक फैशन बन गया नरेंद्र नाथ जी कि हमने बस बोलने के लिए कि अरे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम सेटअप कर दी है, देखिए हम कितना काम कर रहे हैं, बोल दिया। पर हैं तो वही पुलिस अफसर जो उधर ही के हैं और यही करते वैसे भी। हाँ, उसमें सिर्फ उतना ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा जो अलग अलग जो फैक्ट्स थे, आपको सुप्रीम कोर्ट से आपको पता चला कि वहां पे गाड़ी से मौत हुई, वहां पे कई सारी जो फैक्ट्स थी, जो उस वक्त में जो मीडिया में पुलिस की ओर से बयान आया, वो सारे खुद इसी पुलिस ने वहां जाके वहां की। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन था कि आपके पॉपुलर नैरेटिव तो आपका ये चला रहा था, ये प्रोसीडिंग में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने तो पहले ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं। तो इन सब चीजों में कई सारे डाउट्स राइज हुए कि ये पुलिस इस मामले में जो भी कारण रहा हो, पुलिस थोड़ी सी जांच एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक इंडिपेंडेंट एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही थी। बिल्कुल। तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट को एक खुद अपने उनको कहीं से ये नहीं ज्ञान आया, ये खुद पुलिस के जो बिहेवियरल सामने आए, कोर्ट के सामने आए,
फैक्ट्स में आए, जो फैक्ट को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी को सपोर्ट या किसी को करें, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो खुद पुलिस ने आज जो कहा है, फिर 5 दिन बाद जो एक्सेप्ट किया है, ये तो कोर्ट के सामने ब्लैक एंड व्हाइट फैक्ट है, इसमें तो आप कोई आर्गू कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस ने कहा, जज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी इंक्वायरी सही दिशा में नहीं जा रही है, आपके जो फैक्ट्स हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, आप जो पहले कह रहे थे अभी जो कह रहे हैं उसमें काफी डिफरेंसेस हैं। सो अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से मैं मॉनिटर कर रहा हूं, और ये अभी तो वर्डिक्ट नहीं आया है, इसीलिए सबको ये देखना चाहिए कि, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज में डिफरेंस होगा कि एक इंडिपेंडेंट फेयर प्रोब हो जिसमें सही बात सामने आए, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को आर्गुमेंट होना चाहिए। जी, मतलब इतना नहीं तो आप किसको कितना बचाने की कोशिश करेंगे कि अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ से वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में लगे रहे। अश्विनी शाही, डू रिस्पॉन्ड, जो नरेंद्र नाथ ने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कंट्राडिक्टरी ऐसे ही हो जाता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं, न हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कहना चाहेगा, क्योंकि वो एक हमारी संवैधानिक और सर्वोच्च संस्था है। मगर एक हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय रिटायर्ड जज पर भरोसा माननीय सुप्रीम कोर्ट करती है, और उत्तर प्रदेश में जो रिटायर्ड जज थे उसी हाई कोर्ट से उस पर भरोसा नहीं होता है। ये कंट्राडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि वो पुलिस के आदमी नहीं है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, एसआईटी कभी भी गठित होगी, उस एसआईटी में लोकल जरूर रहेगा, ये कहीं का होगा। हम दूसरे प्रदेश की पुलिस से जांच नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारे संसाधन वही हैं। हम अपने पुलिस पर, कुछ पुलिस वालों पर कभी सवाल उठते हैं, मैं उससे नकारता नहीं हूं, लेकिन मैं उसके वजह से एक दो इक्का दुक्का के चक्कर में हम पूरी पुलिस को अपने नकारा साबित नहीं कर सकते, न कह सकते, क्योंकि वही पुलिस हमारी, उसका एक बाल बुलंद है, और वही पुलिस हमारी काम करती है। काम करने में कुछ हो जाता है, क्योंकि ये घटना जब हुई तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वीडियो ही आए थे सारे, रोज एक नए वीडियो आते थे, तो दूसरे दिन वो आज जो होता था बयान कल बदल जाता था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसका गवाह रहा हो और कुछ रहा हो। इतने वीडियो आए, रोज कुछ नए आए। अब वीडियो की जांच करना, कौन सच है कौन गलत है, ये सब भी टाइम लगता है, और पुलिस उस पर काम कर रही थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक्शन लिया है, और उसको सब लोगों ने माना है। हम तो कभी नहीं कहते हैं कि नीति आयोग ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना इस तरीके से केस करता रहेगा तो 334 साल लगेगा, 2018 का बयान था, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम अभी भी ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और किसी दबाव में काम नहीं कर रही है। पुलिस कभी किसी दबाव में काम नहीं करती है। कुछ मामले कभी रहे होंगे, मैं अपवाद की बात नहीं करता हूं, लेकिन इस केस में बहुत सेंसिटिव तरीके से पुलिस जांच कर रही है, और कहीं एक रत्ती और पाई का अंतर नहीं मिलेगा। मैं आपको बस ये आप कहें, ठीक है, ये आपकी बिलीफ है और आपकी ड्यूटी भी है ये कहना, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस सही में चाहती कि ये इम्प्रेशन सुप्रीम कोर्ट को मिले, तो वैसा इन्वेस्टिगेशन करके वो देते। आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट में द जजेस are sitting there with pre-decided notions of whether or not you're doing a fair investigation. They have given you enough chances, like Narendra Nath Mishra was pointing out. The administration of UP government was given enough chances to prove that you're going to do a good job out of it, and they didn't. फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा हम ही बार बार सवाल पूछे, इससे अच्छा एटलीस्ट एक रिटायर्ड जज को बिठाए जो डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग करे, शायद तब एक फास्ट पेस फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके. We are still hoping for that. Thank you to both of the panelists for joining me on this conversation. Viewers, it is very important that we don't forget some of these instances, no matter how long it takes. And if the Supreme Court can take the effort of constantly following up and asking the Uttar Pradesh government, and if they are not satisfied, making changes to ensure that the truth comes out, we should too constantly track this story for you, bring you the updates. What happened there was horrifying. It's not an easy case to investigate because there are varied versions. There are versions of the people who were there, of both sides, heavily divided two sides. There are videos, edited videos. Somebody needs to go and find the full videos to see what really happened, join the dots together. But the truth must come out, not the truth that favors one side or the other.
for the real truth of what really happened there that day. Lives were lost. Those answers must be given. Thank you for joining us on this conversation.